اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں موجود ہوں اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کے مقام ہے 17 میل، اور میرے ساتھ 2 بچے اونار بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے، اور ان کے والد صاحب جاب کے سلسلے میں اسلام آباد آئے ہوئے ہیں اور ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیسی تعلیم دے رہے ہیں وہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے اس پروگرام میں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے تو نیک اولاد عطا فرمائے، اچھی اولاد عطا فرمائے، تاکہ وہ آپ کا اور اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا، اپنے دین اسلام کا نام روشن کر سکیں۔ یہ دونوں بچے جڑواں ہیں، اور یہ دونوں بچے ماشاءاللہ حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ تو میں اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں ان کی بہت خوبصورت طریقے سے تربیت ہو رہی ہے اور تعلیم دلوائی جا رہی ہے۔ تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مبشر حسین صاحب سے تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد مدثر حسین سے نعت شریف سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے مبشر حسین، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ وہ مدثر حسین صاحب سے ابھی نعت شریف کا نذرانہ ہم سنتے ہیں۔ جی مدثر حسین۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے۔ سچ پوچھو تو اللہ کی، سچ پوچھو تو اللہ کی، رحمت بھی انہی کی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے مدثر حسین، جنہوں نے خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کی۔ تو ابھی مبشر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے حفظ کرتے ہوئے، اور کتنے سپارے انہوں نے حفظ کر لیے۔ جی مبشر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلام آباد چٹا پختاور جامعہ طبیان المدرسے میں پڑھتا ہوں، اور مجھے اس مدرسے میں 5 مہینے ہو گئے، تو میں ابھی 30واں پارہ شروع کیا حفظ کرنا۔
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। 5वां महीना हुआ है अभी इनको, तो 30वां पारा ये शुरू हो गए हैं और ये इस्लामाबाद के मदरसे में पढ़ते हैं। तो मुदस्सर साहब से पूछते हैं कि ये कौन से पारे लगे हुए हैं और उनको ये कैसे शौक़ पैदा हुआ कि वो हिफ्ज़ कुरान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चटा पख्तावर इस्लामाबाद जामिया तिबियानुल कुरान में पढ़ता हूँ। मैं 30वें पारे से शुरू किया है अभी 11 सूरतें, और मुझे बचपन से कुरान हिफ़्ज़ करने का शौक़ है। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह, बच्चे बहुत ही ज़हीन बच्चे हैं। मैं जब भी इनके पास आता हूँ, इतने ताबेदार, इतने फरमाबरदार ये बच्चे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। और इस मरतबा जब मैं आया हूँ तो इनसे मिला हूँ तो मुझे और ज़्यादा खुशी महसूस हुई है कि ये मदरसे में ये कुरान पाक को हिफ्ज़ कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से मुझे मिले हैं। और ये जब मैं आया हूँ, अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो मैंने देखा ये अपनी वालदा का हाथ भी बिठा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अपने वालिद साहब को पानी पिला रहे हैं। ये बड़ी मतलब कि जो अच्छी जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों में, वो मैंने इनके अंदर देखी है। तो अभी मैं पूछता हूँ कि आप इसके बाद आपका क्या प्लान है, आपने क्या क्या करना है, आपकी क्या सोच है, आपने इसके बाद क्या करना है। जी मुबशर भाई। मैं इसके बाद हिफ़्ज़ करके उसके बाद आलिम का कोर्स करूँगा, उसके बाद फिर उसके बाद नात खान का कोर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नात ख़्वान, आपको नात ख़्वान बनने का क्यों ज़्यादा इतना शौक़ है। क्योंकि उसमें हज़रत मोहम्मद, हम सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे और इनको जो नेक दिली ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो जो मुदस्सर साहब हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये आगे बढ़कर क्या करेंगे। जी। मैं कुरान हिफ़्ज़ करके आलम का कोर्स करूँगा और फिर उसके बाद नात खान बनूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे मुदस्सर हुसैन और मुबशर हुसैन। खराज तहसीन है इन जैसे बच्चों को और इन जैसे बच्चों के वालिदैन को जो इतनी नेक राह के ऊपर लगाते हैं बच्चों को, उनकी इतनी रहनुमाई करते हैं, तरबियत करते हैं, तालीम दिलवाते हैं, इतनी केयर करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनके जो वालिद साहब हैं, अगर उनसे मेरी बात हो जाए तो वो भी आपको सुनाऊंगा कि उनको ये कैसे महसूस हुआ कि ये दो ही बेटे इनके जड़वां बेटे हैं, तो दोनों के हिफ्ज़ कुरान करा रहे हैं और माशाल्लाह दोनों लायक बच्चे थे। तो ये इनको कैसे शौक़ पैदा हुआ। तो अभी इनके वालिद साहब मोहम्मद हुसैन, जिनका तलक तो टेक सिंह से है और अभी इस्लामाबाद में ये रहायश पजीर हैं, इनसे बात करते हैं। जी। मुझे जी शुरू में शौक़ था कि मेरे बच्चे जब हुए दोनों, बहुत खुशी थी। अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक ने औलाद नरीना से नवाजा और दोनों जुड़वां बेटे थे मेरे माशाल्लाह। और मुझे इस चीज़ का बड़ा शुरू से शौक़ था कि मेरे बच्चे ज़रा थोड़ा संभलें ज़िंदगी में, तो मैं इनको हाफ़िज़ कुरान बनाऊं। माशाल्लाह स्कूल की फ़ील्ड में भी बहुत अच्छे थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। जैसे ही इन्होंने अपना 5 क्लास को क्लियर किया तो मैंने दोनों बच्चों को बैठा के पूछा, मैंने कहा बेटा आगे का क्या प्लान है, आपकी क्या ख्वाहिश है। मैंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आपको मैं हिफ्ज़ कराना चाहता हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि पापा हमें 1 हफ़्ते का टाइम दे सोचने का। इन्होंने 1 हफ़्ता क्यों मांगा वो मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने इर्द गिर्द के माहौल के मदरसे विज़िट करना शुरू कर दिए कि हमारे लिए कौन सा मदरसा, कौन सा माहौल हमारे लिए अच्छा होगा। तो इन्होंने जब सेलेक्ट कर लिया, मुझे कहते हैं कि पापा हमने इस मदरसे में कुरान हिफ्ज़ करना है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। और हिफ्ज़ कराने के लिए या हिफ्ज़ के पीछे एक और बहुत जो मेरी जो ख़ास जो सोच थी वो ये थी कि इंसान है, ये ज़िंदगी आखिर ख़त्म होनी है, कोई ना कोई पीछे ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए दुआ खैर करे, पढ़ने वाला हो। और ये जो अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ करनी ज़िंदगी, ये जो खुशकिस्मत लोग हैं मेरे ख़्याल में किसी किसी के हिस्से में ये चीज़ आती है। क्या बात है मोहम्मद हुसैन साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और ये बढ़िया दिलेराना फ़ैसला होता है कि औलाद, आजकल 2 या 3 बच्चे होते हैं, तो उनमें से भी अगर आप अपनी औलाद को एक पूरा हफ्ता किसी मदरसे में या किसी जगह पे छोड़ते हैं तो बड़ा दिल और गुर्दा चाहिए होता है, बड़ी दिलेरी चाहिए होती है इस चीज़ के लिए। मोहम्मद हुसैन साहब, कोई ऐसा पैगाम जो आप समझते हैं बच्चों को या बच्चों के वालिदैन को आप देना चाहते हैं, या जितने भी लोग देखने वाले हैं उनको कोई ऐसा पैगाम देना चाहें।
میں یہی کہوں گا اپنے بچوں کی زندگی جو آپ پرورش میں کرتے ہیں نا، جو ان کی بیس بناتے ہیں، ان کی بیس میں آپ کو کم از کم اتنا ٹائم لازمی دینا چاہیے. پیرنٹس کو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کی لائف کے لیے ان کو دین اسلام کے کچھ نہ کچھ ان کو اتنا نالج ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ کل کو باپ فوت ہو جائے تو بجائے اس کے کہ کسی مولوی کا انتظار کیا جائے، بیٹا آ کے جنازہ پڑھائے. میری یہ خود ذاتی خواہش ہے کہ میں جب فوت ہوں تو میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا خوبی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں خوشیوں سے نوازے اور ان کی نیک تمنائیں قبول کرے. تو میرا تو یہی ہے کہ ہر جگہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو آج مجھے دلی سکون ہوا ہے کہ میں نے ان بچوں سے بات کی ہے اور ان کا کلام بھی سنا ہے. تو اسی کے ساتھ اگلے ایک نئے پروگرام میں آپ کو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.